of the lesson, Miscible the Otter. The prominent theme of the lesson, Miscible the Otter by Gavin Maxwell, is that we should have great concern to animals. Animals too has great understanding of humans. Life without pet is lonely. Owning a pet is a lifetime commitment involving considerable responsibilities. Yet another theme of the lesson. So Gavin Maxwell lives in a cottage in Kemisferna in the West Highlands in Scotland. One day his dog died and he felt so sad. बहुत दुखी हो गया वो. And he never wanted to domesticate dog. So he thought to keep another pet in his life. And he wanted to entertain himself, to diminish his loneliness. He wanted to keep another pet. So in this lesson, we'll study how his life changed after he domesticated an animal after the death of his lovable dog, Johnny. So in the lesson, we'll discuss, we'll learn how he played with his new pet Miscible. Adjust करता था, play करता था, and travel भी एक बार किया था with Miscible, the otter, from Iraq to London. And how during the journey के दौरान, slowly and gradually what happened during the journey, that also he discusses in the lesson. And ultimately how he had developed a bond, a lovable bond, inseparable bond with his pet. The story starts with his traveling to Basra for some work. During his traveling के दौरान, mentions his friend, his desire to keep a pet. During his journey, the author expresses his desire to domesticate an otter. Otter हम pet के रूप में domesticate करना चाहते हैं. His friend suggested that he can get otter. उसको otter प्राप्त हो सकता है. कहाँ से? Marshes of Tigris River. Tigris is the name of a river. Otters are found there. Along the river Tigris in Iraq, a lot of otters are found there like mosquitoes. You can get it from there. कौन सलाह दिया? उसका friend. लेकिन यही friend बाद में पहुंचाएगा, उसको pet surprise देगा. बसरा जाने का उद्देश्य क्या था? वहाँ पे कंसुलेट ऑफिस था, एम्बेसी था बसरा में, और वहाँ मेल आने वाला था, लेटर आने वाला था. किसका? ऑथर का और उसके फ्रेंड का भी. तो माना था कि लेटर आता था, टेलीफोन कॉल के लिए ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, मोबाइल का ज़माना नहीं था. एक ही माध्यम था इन कम्युनिकेशन का, वो था मेल. मेल मीन्स पोस्ट, लेटर्स. तो बसरा जा कर के ऑफिस में वेट कर रहा था अपना मेल के लिए. अनफॉर्चुनेटली हिज फ्रेंड्स मेल रीच्ड, अराइव्ड ऑन टाइम. दुर्भाग्यवश उसका दोस्त का मेल तो आ गया, लेकिन इसका नहीं आया, अराइव नहीं किया, कुछ देर लगने लगा. बिकॉज ऑफ हॉलीडेज. आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग द मेल, हिज फ्रेंड लेफ्ट द प्लेस. उसका फ्रेंड चला गया बसरा के ऑफिस से. लेकिन यह जो ऑथर है वेट करने लगा. क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए? मेल. बिना मेल लिए नहीं जा सकता है. तो 2-3 दिन बीत गया, वो गेस्ट हाउस में पड़ा रहा. बट आफ्टर 2 or 3 days मेल अराइव. आफ्टर रिसीविंग द मेल, चिट्ठी रिसीव करके ही वेंट टू हिज रूम. अपने गेस्ट हाउस के कमरे में गया. कौन? गैविन मैक्सवेल. And when he went there, he found दो इराक निवासी एक मैसेंजर के रूप में वहाँ बैठा हुआ था उसके रूम के सामने, with a sack, बोरा लेकर बैठा हुआ था. So when he reached his room, he found 2 messengers, 2 अरब निवासी, 2 अरब निवासी, अरब का रहने वाला, इराक का रहने वाला, इराक को अरब कंट्री भी कहते हैं, बैठा हुआ था with a sack and with a note. एक स्मॉल नोट था, एक चिट्ठी भी था. And when he opened the sack, he was surprised to see otter inside the sack. It was surprise gift from his friend. He was very happy and glad to receive otter from his friend, and he named the otter as Miscible. In short, he used to call him Miz out of love and affection. It took some time, कुछ समय लगा Miscible को adjust करने में. Miscible to adjust with his surrounding in the room and the company of the author. So as the otter is found in marshy land, naturally it was covered with mud.
पूरा ऑटर जो है मड से कवर्ड था, सूख गया था मड। और ऑटर का रियल क्या कलर होता है, इट वॉज नॉट विजिबल। इट टुक एटलीस्ट मंथ, महीना लग गया, क्लीनिंग एंड वॉशिंग द ऑटर टू रिवील इट्स एक्चुअल कलर बिकॉज इट वॉज फुल्ली कवर्ड विथ मड। और यहाँ से वर्णन है दैट मिजबिल हैड नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। स्वाभाविक आकर्षण था मिजबिल का वाटर के प्रति। Whenever Mizbil used to visit bathroom, he used to untap the tap with its own hand. अपने से वो खोल पा लेता था क्या चीज को, टैप को। Otter basically is an intelligent animal, a fast learner. Otter used to believe that each drop of water is to be splashed out of the tub. Then he would get peace. वाटर टब से एक एक बूंद पानी, थोड़ा सा ही पानी उसको क्या करता था, स्प्लैशिंग आउट। ही यूज्ड टू स्क्विश इट आउट, स्प्लैश्ड इट आउट, देन ही वुड गेट पीस। यानी खेलता था वो वाटर टब में, बाउल में। एंड व्हेन द बाउल वुड गेट एम्प्टी देन ही वुड बिकम साइलेंट, तब वो साइलेंट होता था। सो द कंपनी ऑफ ऑटर रियली ग्लैडेंड हिम, मेड हिम वेरी हैप्पी। हिज लाइफ वाज गोइंग ऑन स्मूथली, हुज लाइफ, ऑथर्स लाइफ। But now time was to travel back to his homeland, that is London. और वहाँ पे एक प्रॉब्लम आया। British Airlines did not allow animals to travel. British Airlines जो है animals को traveling के लिए permission नहीं देता था। So author arranged another flight, another airlines that would allow animals to fly. Another airlines का व्यवस्था किया वो जो animal को allow करता है फ्लाइट करने हेतु। टू कैरी द ऑटर ही पैक्ड हिम इन अ बॉक्स बिफोर हिज मील। फ्लाइट पकड़ने हेतु उसके पहले उसने क्या किया, पैक कर दिया उसको एक बॉक्स में। कौन, ऑथर गैविन मैक्सवेल। 1 hour बिफोर ओनली ही पैक्ड हिम इन अ बॉक्स सो दैट मिजबिल वुड गेट अकस्टम टू, अभ्यस्त हो जाए कहाँ रहने में, बॉक्स में रहने में। And after packing him, he left for a quick meal because he had to catch flight. When he returned back, he found that the box was still. पूरा बॉक्स शांत पड़ा हुआ था, कोई हलचल नहीं हो रहा था। When he opened the box, he found that the mess was created. उथल पुथल, mess. Inner lining जो बॉक्स का था, it was destroyed by the otter because it was not comfortable in the box. As he was destroying the inner lining of the box, scrum में in this course he had injured himself and blood was dripping from the box air holes. box से बूंद बूंद blood drip कर रहा था, चू रहा था। author was scared, डर गया वो। उसने क्या किया, sharp edges को clean किया and then again he repacked the otter in the same box and he hurried towards the airport to catch his flight as he was late for the flight. They were still far away from airport. Only 10 minutes was left for the takeoff. Plane के takeoff के लिए 10 मिनट ही सिर्फ बाकी था। He hurried and hired a cab. उसने एक कैब को, कैब मीन्स किराए पर कार को हायर किया and managed to reach the airport in time. समय पर पहुंचने में सफल हुआ। कौन, गैविन मैक्सवेल। थोड़ा लेट भी हो गया था। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू देयर हॉस्टेस। सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हुआ वो सब एक्सप्लेन किया वो किसको, हॉस्टेस को। उसने सारी बात बताई दैट ही इज कैरिंग पेट, प्लीज डू सपोर्ट हिम, उसको सपोर्ट करे वो, केयर करे वो। एयर हॉस्टेस वॉज वेरी जनरस एंड वेरी काइंड कोऑपरेटिव लेडी. So Gavin Maxwell also elaborates in the lesson how he develops an admiration, प्रशंसा का भाव उसके हृदय में उस लेडी के प्रति उमड़ा था। इसका भी वर्णन वो लेसन में करते हैं। थोड़ा सा ब्रीद कर सके एयर, यह सोच करके Gavin Maxwell opened the box a little. So the moment he opened the box, the otter out of desperation मानो leaped out of the box, jump किया बॉक्स से बाहर, thereby creating a chaos. पूरे फ्लाइट में chaos उत्पन्न हो गया, उथल पुथल, अफरा तफड़ी मच गया। Passengers were frightened to see a strange animals. Out of fear, a lady passenger stood on the seat, चेयर पे खड़ा हो गई। The author made an attempt to catch the otter and he dived.
थोड़ा डाइविंग भी किया, लेकिन डाइव किया तो कहाँ लैंड किया वो, एक लेडी के भोजन के प्लेट के ऊपर। उस अवस्था में एयर हॉस्टेस शोड जेनरॉसिटी एंड कोऑपरेटिव नेचर। शी टोल्ड द ऑथर टू सिट एट हिज प्लेस कामली। आप बैठिए अपनी जगह पे श्रीमान, I will help you. And she tried to manage to bring back the author. मिज़बिल कुछ देर बाद उपरांत अपने आप आकर के ऑथर के पास आ गया वो। Author himself came again back to the author. In this way, finally Gavin Maxwell reached London. मिज़बिल was fond of playing with ping pong balls. Ping pong balls जो बहुत जंप करता है, हल्का सा ड्रॉप करोगे बहुत जंप करेगा वो। उससे खेलने में उसको बहुत मज़ा आता था। मार्बल से, कंचा से खेलता था वो। अपने आप उसने एक इन्वेंट भी कर लिया एक गेम को विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकन सूटकेस। सूटकेस के एक छोर पर वह मार्बल रखता था, वो लुढ़कता हुआ नीचे आता था, अगेन पकड़ने हेतु छिप जाता था, फिर मार्बल को लाता था, अगेन ही वुड प्लेस एट द टॉप ऑफ द सूटकेस एंड अगेन इट रोल्ड। ये गेम था, डेवलप कर लिया था कौन, ऑटर। So that game used to keep him engrossed for a long time. लंबे समय तक उसमें engrossed रहता था, लिप्त रहता था कौन, ऑटर। उस डेली नरेटर used to take him for a walk with the help of a lead. Lead means पट्टा, जैसे कुत्ते को पट्टा से, रस्सी से हम लोग घुमाते हैं, वैसे ही with the help of lead he used to take ऑटर daily for a walk. और इनफैक्ट ऑथर वॉज वेरी ग्लैड फ्रॉम इनसाइड कि लोग यहाँ प्रशंसा करेंगे, मेरे पास एक यूनिक पेट है। सो व्हेन पीपल ऑफ लंडन नोटिस्ड दिस अनयूजुअल पेट इन द सराउंडिंग, दे मेड वाइल्ड गेसेस। सम थॉट इट टू बी बेबी सील। सील इज एन एक्वेटिक एनिमल। कुछ सोचता था कि बेबी सील है ये, कुछ सोचता था इट वॉज अ स्क्विरल, गिलहरी है ये, और इवन अ हिप्पो, कुछ सोचता था हिप्पो है ये, कुछ मोल सोचता था, लेपर्ड सोचता था, बेयर कब सोचता था। सो व्हेन द ऑथर नियर्ड अ लेबरर while returning back from walk, a laborer noticed that the author was nearing him. He made a peculiar guess. उसने अपने टूल्स को साइड रख दिया। He placed his tools aside and made a very different type of comment that was not acceptable to author. जो ऑथर को एक्सेप्टेबल नहीं था, वो कमेंट था, हे व्हाट इज दैट सपोज टू बी। इस एनिमल को क्या होना चाहिए था, ये एनिमल का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ है, न ये हिप्पो है, न बेबी सील है, न स्क्विरल है, न मोल है, न बेयर कब है। व्हाट इट इज सपोज टू बी दैट रियली मस्ट हैव डिसहार्टेंड द ऑथर। या कमेंट डिसहार्टेंड जरूर किया होगा ऑथर को।